میرا کوشچن میاں عامر صاحب سے بھی ہے اور اسد عمر صاحب سے بھی ہے. سر آپ جو پروپوز کر رہے ہیں ماڈل، آپ بار بار آپ کا ایک ایمفیسس ہے کہ جی پروونسز بننے چاہیے، آپ کی کیلکولیشن موجود ہے. کیا آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایز این اکاؤنٹیبلٹی ٹول کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے صبح سے تقریباً تمام پارٹیوں، تقریباً کیا حقیقت میں تمام پارٹیوں کی یہاں پہ پارٹیسپیشن تھی، اور ان سب نے بڑا کھل کے لوکل گورنمنٹ کی حمایت کی ہے، لیکن ایک نے بھی کبھی الیکشن نہیں کرائے. تو ہمارا جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرولی پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے، فیملی انٹرپرائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے 32 33 پروونسز ہوتے ہیں اور آپ کو 32 چیف منسٹر نامینیٹ کرنے پڑتے ہیں الیکشن کے لیے، تو پر فورس آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بن جائیں گی. ابھی بات ہوئی لوکل گورنمنٹ کی، لوکل گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے، ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں، لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی. تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں، آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے، اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے، جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے، اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں گورنمنٹ میں آگے بڑھیں گے. یہ ہمارے بھی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی حکومت ملے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی پرفارمنس کے اوپر پروموشن ملے. ایک چیف منسٹر، 33 چیف منسٹرز ہیں، جو اچھا پرفارم کرے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے، وہ اپنے سیاسی کریئر میں آگے بڑھے. جو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر صوبے بنیں گے، 33 صوبے بن جائیں گے تو خرچ اتنا زیادہ ہوگا کہ ابھی اتنا زیادہ اور بہت زیادہ ہو جائے گا. ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے، میتھ کچھ اور کہتا ہے. ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر. 40,000 ایسی اسامیاں ہیں جو ختم ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں. ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ کمشنر کو چیف سیکرٹری بنا دیں، آر پی او کو آپ آئی جی بنا دیں، نیچے گورنمنٹ کا ہر محکمہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا ہے، اور اس میں منیمم ڈسرپشن ہوگی، آپ کی جو ایکسٹرا ویکنسیز ہیں وہ ختم ہوں گی، اور آپ ایکچولی بچت کریں گے اور لوگوں کو بہتر گورننس بھی دے سکیں گے. بہت شکریہ میاں عامر صاحب. دوران صاحب اوور ٹو یو. میں واحد بندہ ہوں جس نے پاکستان میں سب سے پہلے نئے صوبوں کی بات کی. اس وقت یہ بات، اس سے پہلے لسانی بنیادوں پہ بات ہوتی تھی، انتظامی بنیاد پہ میں نے سب سے پہلے بات کی. بہاولپور صوبے کی بحالی سے شروع ہوئے اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام تک آیا. اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 4 سال کی عوام کے اندر چلنے والی تحریک کے نتیجے میں وہ پریشر بنا جس نے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو 9 مئی 2012 کو کمپیل کر دیا کہ انہوں نے یونینیمسلی قرارداد پاس کی کہ پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بنائے جائیں. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آئین کے اندر دیے گئے طریقے کے مطابق نئے صوبے بن سکتے ہیں اگر اس کو پولیٹیکل پروسیس سے آگے بڑھایا جائے. نیشنلسٹ پارٹیوں نے بھی، بلوچستان کی پارٹیوں نے بھی، سندھ کی پارٹیوں نے بھی اس ایشو پہ ہمیں سپورٹ کیا اور بڑا کھل کے سپورٹ کیا. ہزارہ والوں نے بھی، سب نے ہمیں سپورٹ کیا. لہٰذا کوئی انتظامی جگلری جو ہے وہ کسی صوبے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. اور عامر نے سب بتا دیا کہ کسی صوبے کے چھوٹے ہونے سے خرچہ نہیں بڑھتا. جب ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی، میں بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اکلوتا پارلیمنٹیرین تھا جس نے اس کو اپوز کیا تھا، جس نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے، جس نے اس پہ اعتراض کیا تھا. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ بوریوں میں بھر کے پیسے صوبوں کو دے رہے ہیں. اس پہ پروویزو ہونا چاہیے کہ یہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے ضلعوں کو اور لوکل باڈیز کو ٹرانسفر کیے جائیں، جو آج تک نہیں ہوئے. اگر آپ نے ملک کے اندر بلدیاتی ادارے بنانے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صوبائی، قومی اور بلدیاتی انتخاب بیک وقت کرائیں، ایک ہی مدت کے لیے کروائیں، اور ان کو وہی آئینی تحفظ بلدیاتی اداروں کو بھی دیں جو آپ صوبائی اسمبلیوں کو اور نیشنل باقی اداروں کو دیتے ہیں، وہ آپ پورے کا پورا اس کو دیں. اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارے قائم رہیں گے. ورنہ 2001 میں ادارے بنے اور 2002 میں جب صوبائی حکومتیں آئیں تو وہ ادارے ختم ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کیونکہ صوبائی حکومتیں ان کو اپنا رائیول سمجھتی ہیں. تو میں اس لحاظ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بلدیاتی ادارے اور پولیٹیکل پروسیس آف میکنگ نیو پروونسز، اس کے ذریعے آپ اپنے گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ چونکہ ہم سیاسی بصیرت
کو देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या मौक़िफ़ है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नज़र में हमारी इस ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम हो, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी 2 आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं, सिस्टम जी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दूध में मिलावट है, जहां सिस्टम मिलावट शुदा है। बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था, ये किसी सरमायादार ने या जगीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिल के इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाएं या लोकल बॉडी सिस्टम बनाएं। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई चार ही नहीं, उस पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले इत्मीनान में लें, बुनियादी चीज है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इंप्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। लियाकत बलोच साहब, आपकी तरफ अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सूबों का क़याम हो, बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो, या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेहकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम किन मसाइल के अंदर हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो एक आइनी अदारा है और उसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का अदारा है, उसको फ़ाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी तरतीब को ठीक करना चाहिए, इसके इक़दामात को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू बहुत अहम है और इस पर एक वसी डायलॉग होना चाहिए। मज़ीद कोई चंद बातें होंगी, अगर फिर मौका मिला तो मैं उस पर बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी लियाकत बलूच साहब आपकी बसीरत का। अब मैं पीर नूरुल्लाह कादरी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी राय का इजहार फरमाएं। तमाम जो मसाइल इस मुल्क के हैं, सिर्फ सूबों के इंतज़ामी इकाइयों में इजाफा ये उसका हल नहीं है। इस पे मुकालमा की ज़रूरत है। कोई नए सूबे बनना शजर ममनुआ नहीं है, लेकिन इस पे बार बार मुकालमे की ज़रूरत है और एक वसी तर मुकालमे की ज़रूरत है। ये गुजारिश करूँगा कि क्रॉस द बोर्ड इस पे सबको सुना जाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की जाए और सबकी राय को लेकर जब भी आपने तरमीम करनी हो, आपने वही रास्ता अपनाना होगा जिस नई सूबों को क़याम के लिए आईन पाकिस्तान ने जो रास्ता बनाना है, उस रास्ते पे चलना होगा, फिर कुछ हासिल होगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया पीर नूरुल्लाह कादरी साहब। आखिर में मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है, वी गो बैक टू बेसिक, शुड पाकिस्तान क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? उस पर मैं आपकी राय जो है वो लेना चाह रहा हूँ। बुनियादी जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता दूं। जितनी पाकिस्तान में मरकजियत बढ़ाते चले जाएंगे, पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा। जितनी ताकत नीचे अवाम तक लेते चले जाएंगे, उतना पाकिस्तान ताकतवर होता चला जाएगा। पहले लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं। दुनिया में मुझे कोई कामयाब मुल्क दिखा दें जिसके अंदर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर और बाइख्तियार नहीं। मेरी ठोस तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए 140A की तशरीह की जरूरत है। आपको आईनी तरमीम के अंदर 3 चीजें वाज़े तौर पे बतानी पड़ेंगी। मुकामी हुकूमतों का 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का इख्तियार क्या होगा, उनका रेवेन्यू शेयर क्या होगा, आपको
वसाइल, इख्तियार और टेंडर प्रोटेक्शन। इस वक्त वजीर आजम सिर्फ तहलील कर सकता है, कौमी असेंबली, वजीर आला तहलील कर सकता है, सूबाई असेंबली, लेकिन जो मुकामी हुकूमत की असेंबली है वो वजीर आला कर सकता है। क्यों भाई? जिस तरीके से उस हाउस का लीडर उन 2 टीयर्स में कहता है, 3rd टीयर में भी होगा। ये है आईनी तरमीम जिसकी जरूरत है आपको। अब आगे सूबों के, देखिए सूबों में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है कि आप सूबे मजीद ऐड करना चाहें, जब तक अवाम के अंदर वो बात नहीं समझ में आएगी। लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं। मैं तो कहता हूं शुरू होने की इब्तिदा करने के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है। भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें ऑलरेडी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हजारा के लिए करारदाद ऑलरेडी मंजूर है। जहां अवाम की मंजूरी है वहां से तो शुरू करें ना। ये मेरा मुख्तसर सा वो है, जरूर बनाए सूबे अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना। मैं फ्लोर से 3 क्वेश्चंस मैं लूँगा। जी सर, मेरा ये लाइक ओपिनियन है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला स्टेट, उसका गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान उससे एज अ नेबर कंट्री, पाकिस्तान उससे क्या लेसन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सो विद इन न्यू प्रेजेंसेस इस डिबेट के अंदर। जी, मेरा क्वेश्चन मियां आमिर साहब से भी है और असद उमर साहब से भी है। सर, आप जो प्रपोज कर रहे हैं मॉडल, आप बार बार आपका एक एम्फेसिस है कि जी प्रोविंसेस बनने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन मौजूद है। क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल कंसीडर कर रहे हैं? एक तो आपने सुबह से तकरीबन तमाम पार्टियों, तकरीबन क्या हकीकत में तमाम पार्टियों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी और उन सब ने बड़ा खुल के लोकल गवर्नमेंट की हिमायत की है, लेकिन एक ने भी कभी इलेक्शन नहीं कराए। तो हमारा जो हम अर्ज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रूली पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, फैमिली एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके 32-33 प्रोविंसेस होते हैं और आपको 32 चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, तो पर फोर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। मैं जी आपको जवाब दे दूं, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविंस के ऊपर नहीं छोड़े आप, शेड्यूल आप ऐड करेंगे। ये चीजें जो हैं, इनकी पावर्स जो हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में आ गई। इसी तरीके से आप रेवेन्यू के ऊपर 2 चीजें उसके अंदर शामिल करेंगे। एक, कौन से टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में होंगे। इस वक्त है ना, जिस तरह ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसी तरीके से लोकल टैक्सेस कौन से होंगे वो आप शेड्यूल के अंदर शामिल करेंगे। दूसरा, एनएफसी अवार्ड इटसेल्फ जो है उसको 3 टियर करेंगे। उसके अंदर ये लिखा होगा इतना फीसद सेंटर का, इतना फीसद प्रोविंसेस का और इतना फीसद 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का। और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला बेस्ड होगी, जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड के अंदर फार्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों के दरमियान। ठीक है जी। और तीसरी जो मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर जो डिसोल्यूशन का इख्तियार इस वक्त प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है, वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजॉरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।